Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th, chapter 5, principles of inheritance and variation. Now in this lecture we'll be discussing about the contrasting traits that were studied by Mendel. So Mendel, he conducted his experiment on garden pea, that is Pisum sativum. Okay, initially what he did, he selected 34 varieties and allowed them to self breed. उनका self pollination कराया, self breeding कराई 34 varieties. Then he later reduced the number to 22 varieties. Okay, and finally from the 22 varieties he selected 7 pairs of pure and true breeding varieties. उसमें से उन्होंने 7 pairs of true और यू कैन से ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ को सेलेक्ट किया. तो वो 7 पेयर्स क्या थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, उसमें से कौन सा डोमिनेंट ट्रेड था, कौन सा रेसेसिव था, और वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे सिचुएटेड थे वो ट्रेड्स. Okay, so that we are going to study. So he selected 7 pairs of pure or true breeding varieties. Okay, so the first was stem height. So as you can see on the screen, I have shown you the dominant character, also recessive, and the chromosome number, that is the trait will present on which chromosome number. As you all know, Pisum sativum में कितने chromosome numbers थे? 14. Okay, 14 chromosomes थे, और किस नंबर पे कौन सा trait present था. Okay, that also we'll be seeing. Okay, the first is stem height. So dominant was the tall and recessive was the dwarf. Okay, so you all know dominant we show it with the capital alphabets and recessive with the small alphabets. Okay, and the recessive is the same letter of the कैपिटल वी यूज़ इट एज अ स्मॉल. सपोज टॉल है तो टॉल में हमने कैपिटल टी यूज़ किया है, सो डॉर्फ में हम स्मॉल टी यूज़ करेंगे. ओके, नॉट वी विल नॉट यूज़ डी. सो अगर वॉयलेट है तो इट विल बी कैपिटल वी, एंड इन वाइट फ्लावर्स it will be small v. In this way we'll be using the dominant and recessive alphabets. Okay, so first was height, stem height. So tall and dwarf. Dwarf was the recessive and it was situated on chromosome number 4. Second was the flower color. Flower color can be violet. Violet is the dominant trait and white is the recessive trait. And chromosome number 1. Flower position, that was axial. अगर एक्सिस पे है, साइड में प्रेजेंट है, और वो डोमिनेंट होगा. और अगर टर्मिनल है, बिल्कुल टॉप पे फ्लावर्स प्रेजेंट है. ओके, टॉप पे एपिकल जिसको हम बोलते हैं एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट है, तो वो रेसेसिव ट्रेट होगा. एंड द क्रोमोसोम नंबर इज 4. पॉड शेप, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड. इन्फ्लेटेड मीन्स होता है फूला हुआ. सपोज हम बलून लें और उसमें हम हवा भर दें तो वो इन्फ्लेट हो जाएगा. और कॉन्स्ट्रिक्टेड मीन्स सुकड़ा या श्रिंक. ओके, सो कॉन्स्ट्रिक्टेड वॉज द रेसेसिव ट्रेट. we'll be showing it with small I, and inflated with capital I. Chromosome number is 4. Now pod color की बात करें तो green and yellow. Green is the dominant trait and yellow is the recessive trait. Chromosome number 5. Seed shape, that is round and wrinkled. Round is the dominant trait, capital R, and wrinkled is the recessive trait, that is small r. Okay, so it is chromosome number 7. Then lastly is the seed color, that is yellow and green. So yellow is the dominant and green is the recessive, and it is situated on chromosome number 1. So these were the 7 pairs of contrasting traits, or you can say characters, that were studied by Mendel. And after studying these character, he also got some results. ठीक है, कुछ उनको रिजल्ट्स मिले जिनके बेसिस पे उन्होंने लॉज बनाए. ओके, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द in next lectures. We are going to study about that also. Now you can see the diagrammatic representation. Okay, this is also a form of chart showing the different traits, but in a figure form, in a diagrammatic form. So it will help you to understand better. Like seed shape आप देख सकते हो, round. It is round and wrinkled. Then seed color yellow and green. Flower violet and white, or you can also say purple. Okay, pod shape full
कॉन्स्ट्रिक्टेड, फुल मीन्स पूरा अच्छी तरह भरे हुए शेप, जब दाने खूब सारे होंगे तो वो बिल्कुल अच्छा सा फुल शेप मिलेगा पॉड का, जो फली होती है मटर की उसको हम बोलते हैं पॉड। कॉन्स्ट्रिक्टेड अगर थोड़ी सी भी सिकुड़ी हुई है, ओके। देन पॉड कलर यू कैन सी ग्रीन एंड येलो। देन फ्लावर पोजीशन, ओके, दैट यू कैन सी, देखिए आप एक्सेस पे निकला हुआ है साइड में, दैट इज एक्सियल, वो जो कि डोमिनेंट ट्रेट है, एंड टर्मिनल, ओके, दैट इज द रेसेसिव ट्रेट। Okay, then lastly is the stem height. You can see tall and dwarf. So in this way you can easily find out, you can easily understand the traits, किस तरह जो थे मेंडल्स ने ट्रेट लिए थे और उनका उससे क्या मतलब था। मीन्स अगर पॉड शेप है तो क्या मतलब था, अगर फ्लावर पोजीशन है तो हाउ इट वाज लोकेटेड। ओके, now moving to the next one. Now after studying these 7 pairs of contrasting characters, so मेंडल ने कुछ रिजल्ट्स डिड्यूस किए थे, कुछ रिजल्ट्स निकाले थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि F1 जनरेशन जो होती है उसमें रेसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। अगर कोई भी एक पेरेंट में रेसेसिव कैरेक्टर है तो वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होंगे F1 जनरेशन में। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैज़ कंक्लूडेड, जिसको उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो रेसेसिव ट्रेट्स होते हैं जो डिसअपियर हो गए थे F1 जनरेशन में, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, वो F2 जनरेशन में रीअपियर हो जाएंगे, मीन्स वापस आ जाएंगे। ओके, और उसके ये दोनों बातें ही इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कही थी, और उसके बेसिस पे उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया था दैट वाज, अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो 3:1 का रेशियो उनको मिला था। दैट वाज द रेशियो ऑफ डोमिनेंट टू रेसेसिव, ओके, इन F2 जनरेशन। 3 जो थे टॉल प्लांट्स थे और 1 जो था वो ड्वार्फ था। तो F2 जनरेशन में वापस जो था रेसेसिव ट्रेट वो रीअपियर हो गया, ओके, इन द फॉर्म ऑफ recessive trait, that was the dwarf plant. Okay, so this was the result of the मेंडल ने ये रिजल्ट फाइंड आउट किया था। ओके, सपोज इन दिस वे आप इस तरह इसको समझ सकते हैं। सपोज अगर हमने एक ट्रेट की अगर हम बात करें, जैसे मेंडल ने हाइट लिया, अगर आप किसी भी ट्रेट से इसको आप क्रॉस बना के इसको आप स्टडी कर सकते हो। सपोज अगर हम फ्लावर कलर लें तो फ्लावर कलर आपको पता है पर्पल था और वाइट था, 2 फ्लावर कलर्स थे, 2 वैरायटी थे। और फिर क्या हुआ कि ये जो पर्पल था दैट वाज द डोमिनेंट एंड दिस वाइट वाज द रेसेसिव। तो सबको सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन जो था उससे प्योर वैरायटी ली, और प्योर वैरायटी को उन्होंने पी जनरेशन कहा, पेरेंट जनरेशन। और जब पेरेंट जनरेशन को क्रॉस किया, ओके, दैट मीन्स कैपिटल वी इंटू स्मॉल वी, ओके, जब इसको क्रॉस किया तो उनको F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, एज यू ऑल नो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होते हैं तो सारे पर्पल फ्लावर मिलेंगे। और जब इनको F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा, ठीक है, पहले तो हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया पेरेंट जनरेशन का, मीन्स फादर और मदर का, उससे हमको मिले सारे पर्पल फ्लावर। फिर उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, मीन्स जो भी हमको कैपिटल वी और स्मॉल वी था उसको कैपिटल वी और स्मॉल वी से ही क्रॉस कराया, ओके। और उसमें हमने देखा कि जो रेसेसिव कैरेक्टर था, जो रेसेसिव कलर था दैट वाज वाइट, वो F2 जनरेशन में अपीयर हो गया, ओके। सो इन दिस वे ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने इसको बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसके बेसिस पे उन्होंने 2 लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके, जिनके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एवरीबॉडी।